जैसे मेरे स्टूडेंट्स थे और आपके जैसे लोग मेरे साथ में, लोगों के साथ में मैं जुड़ पाया। मैं प्रिविलेज इसलिए भी हूँ कि 1964 से 2002 तक मैं मणिवई में था और भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से काफ़ी लोगों को मैंने पढ़ाया और उसके बाद में सेकंड जनरेशन के बच्चों को भी पढ़ाया। प्रफुल्ल के बच्चे, सुनई के बच्चे, सभी के बच्चों को, सभी बहुत लोगों को पढ़ाया। यस। और उसके बाद में आपको आश्चर्य लगेगा कि मेंडलिज्म में उसको F3 जनरेशन बोलते हैं, थर्ड जनरेशन। उसके भी लड़के मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं। So I am a privileged person and I thank you very much for calling me here. Thank you very much. Thank you. Thank you very much that we have been called, we teachers have been called by you, by the students like you. It clearly shows that the personality of the teachers is really significant both in action and thought, and therefore you are calling us. So it is, we are fortunate enough that we are always in you, we shall always remain in you, that is our wish. I want to tell one thing. To introduce myself, I have got one child, one son. He is pediatrician and his missus is gynecologist. Both are having a hospital at Baramati, maternity and children hospital. He is also going to Kolhapur near Patil Medical College for inspection. Now, whatever I have imagined, that has been in the realization now. I want to tell one thing, that today's imagination is tomorrow's realization. This imagination plays a very important role in the life of a person because it develops our personality, it develops our life. That imagination may be multidimensional, but every human being has a desire to be in that. This imagination is a double-edged sword. If our imagination is good imagination makes our life happy, and the bad imagination or the lower class imagination, it ruins our life, it hurts us and it hurts the society in which we live. So there are so many things to tell, but because of the time, I tell you one thing lastly, and that is the quotation: put yourself to work and you will find that some tremendous energy is coming from within, that it is so hard you cannot bear it. The least work done for others awakens the power within. Even if you think a least good of others, gradually the strength of a lion develops. But the essential thing is renunciation. त्याग पाहिजे आपल्याला, त्याग. Renunciation is there. Without renunciation,
Nobody can pour out his heart in working for others. A man of renunciation sees all with equal eye and devotes himself to the service of all. Lastly, I end with this sentence. There is no easy way to glory. There is no rosy way to fame. It takes a little courage, little self-control, and some grim determination if you want to reach your goal. And I think all of you are at the top of the success. Our blessing and Ashirwad are with you. Thank you. मैं सोच रही थी यहाँ पे खड़े होके शांत होने के बाद में उनकी आवाज आने रुक फिर बोलूँ तो पहले मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जो भाई बहन मेरे भाई बहन तो नहीं काफी बच्चे शुक्रिया अदा करूंगी मुझे यहाँ पर बुलाया और आप लोगों ने इंट्रोड्यूस अपने आप को कराया तो मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप यानी कितने दिन से आपने गुरु को यहाँ पर श्रद्धा से आदर पूर्वक बुलाया और आपने जो समर्पण का भाव बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही भले 40-50 साल बाद हम मिल रहे हैं और हमारी किस्मत में था इसलिए हम मिल रहे हैं कहा फिर भी जैसे किसने कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सही बात है हमको यदि भगवान के पास भी जाना है भगवान का भी रूप देखना है तो कहीं गुरु की राह से ही जाना पड़ता है क्योंकि उसके बिना कोई रास्ता नहीं आज भले गुरु कुछ कह रहे थे यहाँ पढ़ाने वाले आध्यात्मिक अलग है ये पढ़ाने वाले हैं लेकिन गुरु गुरु ही होता है और सबसे पहला गुरु जो होता है फादर एंड मदर रहते जो हमको चलना बोलना सब कुछ सिखाते हैं और उसके बाद हम अध्यालय स्कूल में जाते हैं वहाँ पर फिर हमको यानी ये जो अक्षर ज्ञान वगैरह है इसकी शिक्षा मिलने लगती है और इसको हम एक बहुत बड़ा अपने जीवन में मानते क्योंकि गुरु ही हमको गुरु के कारण ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है भविष्य मैंने एक हमने यदि उसके प्रति श्रद्धा रखी तो निश्चित ही हम भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं यदि हमारे मन में श्रद्धा भाव नहीं है आदर भाव नहीं है सम्मान नहीं है तो एक लोगों को कौन से गुरु ने सिखाया था लेकिन एक लोगों ने केवल उनकी मूर्ति सामने बना ली और उस पर सतत अभ्यास करता था यानी सतत अभ्यास करने से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू मैं पाए गोविंद यानी गुरु और गोविंद दोनों भी खड़े हैं मेरे सामने मैं किसके पैर लगूं लेकिन गुरु ने बताया कि ये गोविंद है इसके तुम पैर करोगे ऐसा करके गुरु का महत्व आज भी है अब जो बिगड़े हैं उनकी बात अलग है लेकिन मानो तो गुरु का महत्व कभी भी कम होने वाला नहीं और आपने जो यहाँ पर समर्पण और श्रद्धा भाव बताकर मुझे यहाँ बुलाया मैं इसके लिए बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद रखा और इतने समय बाद भी मैं बुलाकर आपने बुला लिया घर ढूंढ लिया मुझे बुला लिया इसलिए मैं आप सबकी इथे नाही राजकारण नाही घेणार मी संजय अगरते मी तुमच्यासोबत शिकलो मला यायला उशीर झाल्याबद्दल मी आज सर्वांची तुमची माफी मागतो नाही सवय नाही आहे सवय नाही आहे या 3 वर्षात लागलेली सवय आहे पण तशी सवय नाही अरे हा गुन्हा झालाय माझा हा अनुभव मला तेव्हा झाला जेव्हा मी त्या पार्टीत अध्यक्ष झाल्यावरच झाला की किती उशीर